السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے متاع جان ہے تو مصنفہ ہے ایس مروہ مرزا، قسط نمبر 7۔ بھائی برخوردار اتنی دیر لگا دی، آ جاؤ۔ حمان کو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی کیونکہ پہلے 2-3 گھنٹے گاڑی کی ٹیوننگ اور مرمت پر لگ گئے اور پھر وہ گھر گیا کیونکہ حور نے بھی آرڈر دیا تھا کہ اسے بھی لے کر جائیں۔ لہٰذا حمان پہلے گھر گیا اور پھر حور کے ساتھ جلال صاحب کے گھر۔ سب کو یوں جمع دیکھ کر حمان کی چھٹی حس نے ویسے بھی اسے کسی خطرے کا الارم دے دیا تھا۔ ہانیہ اور مانیہ دونوں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگوا رہی تھیں جبکہ باقی تمام مرد حضرات لاؤنج میں تھے جہاں حمان بھی آ کر علی کے ساتھ بیٹھا اور حور فوری دادو کی گودی میں چڑھ کر پیار لینے لگی۔ جی انکل، دراصل گاڑی کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا تو سوچے کام نمٹا کر ہی جاؤں، ویسے خیریت تو ہے، آپ سب جمع ہیں یہاں؟ حمان نے دھیمے انداز میں اپنے آنے کا جواز پیش کرتے ہوئے ساتھ حیرت کا اظہار کیا کیونکہ فیصل اور مانیہ کے علاوہ اکمل بھی وہاں موجود تھے۔ حمان کو سب نے ارجنٹ بلایا تھا تو اس کے نزدیک ضرور کوئی بات تھی۔ ساتھ بیٹھے علی نے شرارت کے پیش نظر کچھ کہنا چاہا مگر بابا جانی کی مصالحت کی گھوری پر وہ اپنی بدتیسی چھپائے باز رہا کیونکہ جلال خود حمان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ حمان سب کے چہرے کھوج رہا تھا۔ پہلے ڈنر کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں بات، آ جاؤ سب۔ دونوں خواتین نے ڈنر لگنے کی اطلاع دی جس پر جلال اپنی گود میں حور کو اٹھاتے سب کو کہہ کر خود بھی ڈائننگ کی سمت پڑ گئے۔ حمان اس تجسس کے بڑھنے پر اور علی کی مشکوک بدتیسی پر اپنا تجسس بھی بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران جلال، اکمل اور فیصل ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ مقصد ماحول کو اس خطرناک دھچکے کے اثرات کے لیے ریڈی کرنا تھا۔ مانیہ کا دل تو ابھی بھی ڈر میں مبتلا تھا جبکہ ہانیہ کو اب اگر کسی کی بھی فکر تھی تو وہ حمان تھا۔ وہ قبل از وقت ہی حمان کے ناقابل یقین تاثر کو امیجن کر چکی تھی۔ کھانے کے دوران حور بھی مسلسل دونوں عنقریب بنتے دلہوں سے شرارتیں کر کے ماحول خوشگوار کرتی رہی۔ کھانے کے بعد تمام افراد ایک بار پھر لاؤنج میں آ کر براجمان ہو چکے تھے۔ ماحول میں یکلخت ایک پراسرار سی خاموشی تھی اور جلال صاحب نے آخر سب سے اشارے میں بات کہنے کی اجازت طلب کی اور کچھ کہنے کے لیے اپنی ساری توجہ سنجیدہ سے حمان کی سمت مبذول کی۔ دراصل اب بات کی طرف آ جانا چاہیے۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے ہم نے شانزہ اور علی کی شادی طے کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہانیہ اور میری خواہش ہے کہ تم بھی اس فیصلے کے پابند ہو جاؤ۔ اسی معاملے کے لیے ہم نے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم جان لو کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ جلال بہروز نے لہجے میں فرض جیسا اثر ملائے تمہیدی انداز سے بات کا آغاز کرتے حمان کے چہرے پر بڑھتی سنجیدگی محسوس کی۔ جی انکل، میں آپ ہی کو بتا چکا ہوں کہ مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ سب کی خوشی۔ حمان کے اس جواب نے فیصل اور مانیہ کو تھوڑی ہی صحیح پر تسلی فراہم کی مگر ابھی اصل بات تو باقی تھی اور سبھی حمان کے تاثرات جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ دیٹس گڈ، تو کیا تم جاننا چاہو گے کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے اور اس سے پہلے اگر تم کسی کو اس منصب کے لیے پسند کر چکے ہو تو ہمیں بتا دو۔ جلال صاحب نے اپنے پختہ اور شفیق انداز میں بات مزید بڑھائی جس پر حمان نے کچھ دیر اپنی آنکھیں چرا کر کسی کا چہرہ اپنے دماغ میں نمودار ہوتے پایا۔ دل میں چھپی چنگاری کو جیسے ہوا لگی تھی۔ حمان نے خود پر قابو برقرار رکھتے ہوئے ایک نظر ہانیہ کی سمت دیکھا اور پھر جلال انکل کی سمت دیکھ کر سر اس بات میں ہلائے متوجہ ہوا۔ میں جاننا چاہتا ہوں اور دوسری بات کا جواب یہی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ حمان نے دل کے امڑتے جذبات کو پوری قوت سے لگام لگا کر ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس پر اس کا دل اسے جنگ کرنے کو دھڑک سا اٹھا۔ ایمل، یہ نام حمان کے ہوش و حواس پر کسی ہتھوڑے کی طرح ٹکراتا محسوس ہوا۔ کچھ دیر پہلے جو دل بے ہنگم ہو کر آہو بکا کر رہا تھا یوں لگا اسے سکون سا آ گیا ہو۔ سبھی دل تھامے حمان کے چہرے کے تباہ کن برہمی سے اٹے رنگ دیکھ کر سہمے تھے اور حمان کے اپنے دل سے آج پہلی بار ناراضگی طے ہوئی اور وہ سخت غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حمان کے ماتھے پر اس قدر تناؤ دیکھ کر باقی سبھی کھڑے ہو چکے تھے۔ واٹ ایمل، اب سب میری شادی اس پاگل سے کروا رہے ہیں؟ انبلیویبل، آپ ہی یہ سب کیا ہے؟ حمان کا یوں تیش میں آ جانا وہاں موجود ہر فرد کے چہرے کو مرجھا گیا، یہاں تک کہ حور بھی اداسی سے ہمیں کو اتنے غصے میں دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ حمان وہ سدھر جائے گی، سب کو یہی لگتا ہے، اپنی بچی ہے گھر کی اور پاگل ہے مگر تم اسے اپنے رنگ میں رنگ لینا۔ ہانیہ نے ہمی کے سخت اور پیچیدہ غصے سے دبے بات کہی جس پر وہ اسے سخت تعصب سے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے ایسی کسی لڑکی کو اپنے رنگ میں نہیں رنگنا، آپ سب سے دلی معذرت، میں ایسے کسی مشکل فیصلے کو لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ حمان نے بے اعتنائی کے سنگ سب کو ڈھکے لفظوں میں صاف انکار کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے غصے کو دباتا وہاں سے چلا جاتا فیصل کی آواز نے اس کے سبک رو قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک باپ کی درخواست سمجھ لو حمان بیٹا، میری عمل بری نہیں ہے،
तुम यूं इनकार मत करो, मुझे तो तुमसे बेहद उम्मीदें हैं। वो और किसी के साथ नहीं चल सकती। हमान, प्लीज मेरी एमी की तबाह होती जात को सिर्फ तुम जैसा समझदार और बाहिम्मत इंसान संवार सकता है। प्लीज बेटा। यूं फैसल उसे दरखास्त करके रोक तो गए थे, पर हमान का जिगरा अभी भी इतना बड़ा ना हुआ था कि वो ऐसा बेजोड़ फैसला मानता। सख्त बरहम और जर्द आंखों की बेहिसी लिए वो फैसल की खुदगर्जी पर दंग था, बल्कि आज यहाँ मौजूद हर फर्द ही हमान को खुदगर्ज लग रहा था। आप मुझे भी समझने की कोशिश करें फैसल अंकल, शी इज नॉट माई टाइप, और मैं ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं हूं कि ऐसी तोप खुद पर चला लूं। आप सबने सोचा है इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? उसे पता है ये सब? क्या वो जानती है कि उसकी शादी मुझसे हो रही है? बोले आप सब। हमान अपने उमड़ते जलाल पर हर मुमकिन काबू किए सब पर अपनी इस्तफामिया निगाहें गाड़े सख्ती से बोला, और सबके खामोश चेहरे हमान का पारा मजीद बढ़ा चुके थे। उसको बता दिया तो वो अपना नुकसान कर लेगी बच्चे। अब की बार मानिया ने दुखी सा होकर कहा, और हमान ने सख्त बेचैनी के संग उंगलियों की पोरों से कनपटी सहलाई, गोया रगें थी कि फड़क उठी थी। ओ मेरे खुदा, आप सब क्या करने का सोच रहे हैं? मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि ना वो मुझे कबूल करेगी, ना मेरे अंदर उसे सहने की कोई ताकत है। लिहाजा ये रिश्ता एक ना एक दिन खत्म होगा। जबरदस्ती घर तो बसाए जा सकते हैं, मगर दिल नहीं। और अगर आप सब उसे मेरी अमान में देने का सोच रहे हैं तो तब भी ये एक मुज़हका खैज ख्याल है। मैं ज़रूर इस बारे में सोच सकता था अगर उस लड़की में कोई इंसानी खसलत होती। हमान की इस बात पर सबके चेहरे सफ़ेद थे। आली और हूर अलग मुंह लटकाए खड़े थे, और बड़े तमाम भी जानते बूझते कि हमान ठीक कह रहा है, तब भी अफसरदा थे। हमें यार उसे इंसान ही तो बनाना है तुझे, सबकी तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, सबका मान मिल रहा है तुझे, उसे यूं मत ठुकरा। एमल को तेरी ज़रूरत है यार। देख फैसल अंकल और मानिया आंटी की दरखास्त को मत ठुकरा। तू ऐसा तो नहीं है, हमें तुझे तो हिफाजत देना और साहिब अमान बनाने का सही ढंग आता है। आलियान से भी अब चुप ना रहा गया। सख्त तासुब ज़दा हुए वो हमान के शाने थामे उसकी आंखों में देखकर बोलता गया, और हमान का सर इस सूरत हाल में वाकई दर्द कर उठा। ये मेरे बस की बात नहीं है आली। हमान ने उसके दोनों कंधों से हाथ झटक कर बेरुखी से रुख फेर लिया। सभी हमान के रवैये पर उदास थे। उसे सुधारने के लिए तुम उसके साथ जो मर्जी करो, हमान उसे सख्ती या नरमी दोनों से ट्रीट कर लेना। उसे ये हक ना देना कि वो तुम्हारे लिए किसी बेचैनी का बाइस बने। तुम उस पर हाकिम भी बन लेना, मगर प्लीज एमल के लिए मान जाओ। ये तुमसे लाचार और बेबस वालिदैन की गुजारिश है। मानिया की अकब से रुहासी और भीगी आवाज सुनकर वो मजीद मुड़ा ना रह सका, और जब पलटा तो अपने सामने मानिया की आंखों के आंसू देखना उसके सारे इरादों पर मिट्टी डाल गया। नजर उस बाप पर पड़ी तो मजीद हल्कान कर गई। हर कोई हमान की सिमत निगाहें लगाए जिंदगी बढ़ाने की सबील चाहता था, और फिर होर ने हमी का हाथ पकड़कर उसे खुद की सिमत देखने पर माइल किया। वो थोड़ी हिटलर है हमी, खड़ूस सी, पर आपको सच्ची बताऊं वो होर को भी थोड़ी अच्छी लगी थी। देखे ना हमी, सब आपसे कितनी सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सब हैं ना, अगर उन्होंने आपको कभी भी हर्ट या परेशान किया तो हम सारी पार्टी आपका साथ देंगे। यहाँ तक कि एमल आपी की मम्मी और उनके डैडी भी हमारे साथ होंगे। क्या आप ये डिफिकल्ट डिसीजन ले रहे हैं? हूर की मासूम सी इस बात पर सबके दिल को ढारस तब मिली जब हमान ने बेदिली से ही सही पर सर को असबात में हिलाकर कई दिलों की बुझती धड़कन बहाल की। आलिया और हूर तो तपे हमी से बाकायदा चिमट ही चुके थे, और मानिया और हानिया के साथ लगी खुशी से रो रही थी। बाकी मर्द हजरात भी ऐसी ही खुशबस्तगी में मुब्तला थे। याहू हमी, आप इस दुनिया के बेस्ट मैन हो, आई लव यू। मान गए हमी। हूर की खुशी पर सभी मुस्कुरा दिए, और अब फैसल और हमान थे जो आमने सामने थे। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा मेरे बेटे, गले लग जाओ, तुम वाकई एक बेहतरीन इंसान हो। फैसल का यूं गर्म जोश और तशक्कुर से हमान को गले लगाना तक हमान के सख्त चेहरे पर कोई नरमी ना ला सका। सबकी खुशी देखकर उसे लगा यहाँ से फौरी चला जाए। मानिया ने भी बेहद मोहब्बत से हमान की पेशानी चूमी, जो इस बात का इजहार था कि वो उसे बेटे की तरह अजीज जान चुकी हैं। हानिया के रूबरू होते ही हमान ने उदासी से देखा, और वह नजर हानिया के दिल को भी उदास कर गई। अब अगर वो बहन से शिकवा ना करता तो किससे करता? कोई उसके अंदर की कैफियत नहीं जान सकता था। रेहान और अकमल ने भी हमान के इस जीतदार फैसले पर उसे बारी बारी गले लगाए सराहा, और हमान तो यूं रोबोट लगा जैसे उससे वाकई उसके सारे एहसास सल्ब कर लिए गए हों। उसके बाद सब क्या क्या बात करते रहे उसका हमान को इल्म ना हो सका, क्योंकि वो कुछ देर अपनी गैर दिमागी में मुब्तला रहकर इजाजत लिए चला गया। हानिया और आली दोनों उदास थे, क्योंकि वो सबसे अलग थे और हमान की इस वक्त कंडीशन भी अच्छे से समझ सकते थे। कहाँ थे आप दोनों? खान बाबा बता रहे हैं सुबह से गायब थे। फैसल की गाड़ी पोर्च में रुकी तो एमल ने मुंह बसोर कर सीने पर हाथ बांधे
اپنا رخ گاڑی کی طرف کر کے مانیہ کے ساتھ آتے بابا کی سمت کیا اور تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ شام کو حب اور شانے کے ساتھ آج آؤٹنگ بھی کر آئی تھی اور اب تو رات ہو چکی تھی۔ بھئی ہماری پرنسس تو حوالدار لگ رہی ہے، اندر تو آ جاؤ، بتاتے ہیں کہاں تھے۔ فیصل تو آج کچھ الگ ہی خوشی میں تھے، ایمل کو تمام تر خفگی کے ساتھ لگائے اندر بڑھتے ہوئے بولے اور مانیہ بھی مسکرا کر پیچھے چل دی۔ ایمل نے تجسس سے لاؤنج تک جا کر بابا سے الگ ہوتے ان کو دیکھا، جو اب صوفے پر بیٹھتے ہی ایمل کے بازو پکڑ کر اسے بھی بٹھا چکے تھے۔ ہم تمہاری شادی طے کرنے گئے تھے، 5 کو شانزے کی جبکہ 6 کو تمہارا نکاح ہے۔ فیصل نے اتنی بڑی بات اس آرام دہ سے کہی کہ ایمل آنکھیں پھاڑے بابا کے اطمینان کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسی طرح وہ حیرت سے مانیہ کو دیکھ کر بابا کی گرفت سے برہمی سے نکلی، جس پر فیصل کچھ پریشان لگے۔ واٹ، اتنی جلدی؟ آپ دونوں کو مسئلہ کیا ہے مما؟ بابا ایسا سلوک تو دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں تو آپ کی سگی اور اکلوتی اولاد ہوں، اور پتہ نہیں کس ڈنگر کو چنا ہوگا آپ نے، اس نے انکار کیوں نہ کیا؟ آپ نے بتایا نہیں کہ ایمل انسان نہیں ایلین ہے؟ بولے۔ ایمل کو صدمے سے چکر آتے آتے رہ گئے اور فیصل اور مانیہ کچھ دیر پھٹے تاثرات سے ایمل کے الفاظ ہضم کرتے رہے اور بھی دونوں ہی ہنس پڑے۔ البتہ ایمل کو ضرور اب ان دو کی ہنسی پر طیش آ گیا تھا اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے جانے پر یہ خوشی ان دو کے چہروں پر پھوٹ رہی ہے۔ ارے میرا بچہ، غصہ نہیں کرتے، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہم تو ہنس اس بات پر رہے ہیں کہ تم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو، اپنی قصیدہ خوانی کرتی۔ بس کر دے میرے باولے بچے، فیصل کی لاڈ دیتی اس بات پر ایمل کو اب رونا آیا، مگر بابا جان اسے اچھے سے دبوچ کر اس کے غصے میں پچ کی گالیں مزید دبانے لگے اور مانیہ بھی ہنسنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سب کو ایک سا کوس رہی تھی۔ ہنس لیں آپ دونوں، نہایت برے ہیں آپ، میں بھی قسم کھاتی ہوں ایک بار اس ڈنگر کے پاس گئی تو مڑ کر نہیں آؤں گی۔ چھوڑیں مجھے بابا، چھوڑیں، خوشیاں منائیں آپ دونوں مجھ جیسے عذاب سے چھٹکارا ملنے پر۔ ایمل اس وقت نہایت دکھ میں دل برداشتہ سی بابا کی گرفت جھٹک کر دونوں کو سخت عتاب اور تکلیف سے کہتی پیر پٹک کر اندر بڑھ گئی۔ مانیہ اور فیصل تو اس لڑکی کے اس رویے کو دیکھ کر پتھرا کر رہ گئے تھے۔ مجھے تو ایمل کے نکاح والے دن آنے والے تاثر سے خوف آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا۔ فیصل اسے سمجھائے نہ کہ یہ پاگل پن چھوڑ دے۔ مانیہ نے کانپتے دل کے ساتھ اٹھ کر فیصل کے پاس بیٹھے اپنے خدشے کو زبان دے کر خود فیصل کو گہری پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ سے دعا کرو مانیہ کہ وہ یہ نکاح کسی بھی طرح کر لے، باقی میں اسے سمجھاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ بھلے فیصل اس وقت خود پریشان تھے، مگر انہیں حمان سے بہت سی امیدیں تھیں اور کہیں ایمل کی تربیت پر مان تھا کہ کم از کم بھری محفل میں بابا کی عزت کو نیلام نہیں کرے گی۔ خدا جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اوہ اللہ پاک خیر کریں، یہ تو بہت عجیب صورتحال ہے۔ حمان ہے کہاں؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ رات تک ہانیہ، ریحان اور حور بھی واپس آ چکے تھے اور آتے ہی ساری صورتحال علیم بابا کو بتائی گئی، جن کی اپنی حیرت سے عجیب حالت تھی، اور حمان جو تب سے غائب تھا اس کی فکر ان کو لاحق ہو گئی۔ فاہد کو ہانیہ سلا آئی تھی اور ریحان بھی سونے چلے گئے تھے، البتہ حور، ہانیہ اور علیم بابا اب لاؤنج میں فکر سے ہلکان بیٹھے تھے۔ مجھ سے خفا لگ رہا تھا کہ ایسی لڑکی چنی اس کے لیے جو اسے نامنظور تھی، اوپر سے سب کا دباؤ اسے یہ سب قبول کرنے پر مجبور کر گیا ہے۔ پر بابا وہاں سچویشن ہی ایسی تھی کہ حمان ہی واحد سہارا تھا۔ آپ ہی بتائیں کہ کیا کرتے ہم؟ ہانیہ جو خود حمان کے لیے کسی احساس جرم میں تھی، روحانسی سی ہوئے بولی، جس پر حور بھی اداس ہوئی اور علیم بابا کے چہرے پر بھی تلخی ابھری۔ میرے ہمیں اداس ہو گئے ہیں مما، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاس ہی گود میں بیٹھی حور تھوڑی گھٹنے پر ٹیکے معصوم سی ترنگ میں بولی، جس پر علیم بابا نے شفقت سے حور کی گال تھپ تھپائی اور ہانیہ کو بھی فکر نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ میں بات کروں گا حمان سے، وہ سمجھدار بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ میں یہاں ہوں، تم دونوں آرام کرو جا کے، اور آپ کے ایلی ہے نا میرا بچہ، صبح تک آپ کے ہمیں اداس نہیں ملیں گے، پرامس۔ علیم بابا ہی اب آخری ڈھارس تھے کہ کچھ حمان کا عتاب کم کر پاتے۔ ہانیہ نے شکر گزار انداز میں بابا کی سمت دیکھا جو اس کے سر پر شفیق ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حور کی پیشانی چومتے وہ مسکرا دیا، اور حور تو اس بات پر اس سے چمٹ ہی گئی۔ اس کے ہمیں کی اداسی دور کرنے والا ہر فرد اسے عزیز تھا، اور حور کے ایسا کرنے پر ہانیہ اور بابا دونوں مسکرا دیے۔ حور کو نیند آ رہی تھی، اس لیے زبردستی ہی سے ہی ہانیہ بھی سونے چلی گئی۔ علیم بابا وہیں صوفے پر نیم دراز گھڑی کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جو ایسا ناقابل برداشت فیصلہ قبول کیے 2 گھنٹے سے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا، اب جیسے تھک ہار کر گاڑی کو روک کر اپنے بے ربط سانس بحال کرنے لگا۔ چہرے پر تناؤ اور پیشانی شکن آلود تھی، آنکھوں میں گلابی پن تھا جو ضبط کی ترجمانی کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے، یہ کیسے امتحان ہے؟ مجھے مت آزمائیں پلیز۔ کیوں؟ آخر کیوں ساری دنیا چھوڑ کر وہی آئی میری راہ میں؟ دل کی راہ میں بھی اسے لے آئے آپ؟ یا اللہ، یہ میرے لیے بہت مشکل سفر ہے۔
بے قراری سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرے وہ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ یوں لگا حمان نے ہار مان لی تھی۔ دل کی دستک اب پہلے سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ دل کی غیر ہوتی حالت پر حمان غم زدہ تھا۔ دوسری سمت تکیے میں سر دبا کر آنسو بہاتی ایمل یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آج اسے یوں بے موقع رونا کیوں آ رہا ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے آخر جلن اور دکھ ہے کس چیز کا، مما بابا کے رویے کا، شادی کا، یا پھر کوئی اور معاملہ تھا جو اس کے دل کو رنج دے رہا تھا۔ کب وہ دل جلاتی نیند میں اتری اسے خبر نہ ہوئی اور حمان بھی 11:30 تک گھر پہنچا اور تھکے سے انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا، جہاں سامنے ہی علیم بابا کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں چراتا ان کی طرف آیا، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہی جاگ رہے تھے۔ سوری بابا، دیر ہو گئی، وقت کا پتہ نہ چل سکا۔ حمان کے پوچھے سے انداز پر علیم بابا نے اداس سی مسکراہٹ سے اس کے کندھے کو تھپکی دی اور بات کو صبح تک موقوف کیے اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، صبح یونی جانے سے پہلے مجھ سے مل کر جانا، کچھ بات کرنی ہے۔ کھانا لگاتا ہوں، کھا لو اور آرام کرو۔ حمان سے اس وقت بات کرنا وہ مناسب نہ سمجھ رہے تھے، مگر حمان کی بیزار سی نہ پر مڑ کر اداس اور فکر سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگے، جو آج پہلی بار اس قدر الجھا اور تھکا ہوا تھا۔ نہیں بابا، مجھے بھوک نہیں، صبح ملتا ہوں۔ حمان کے لہجے میں اکتاہٹ اور چال میں واضح تھکن تھی۔ حمان چپ چاپ علیم بابا کو جاتے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی بنا چینج کیے اور فریش ہوئے کوٹ اور باقی فون چابی وغیرہ اٹھا کر صوفے پر مارتا بیڈ پر گرا اور وہیں سے تکیہ اٹھائے اپنے سر پر رکھے ہاتھ بڑھا کر وحشت خیز لگتا لیمپ بجھا کر اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ کچھ بتایا اس نے کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ اکبر اپنی وردی میں دبنگ انٹری کے ساتھ پولیس اسٹیشن داخل ہوتے ہی اپنے کانسٹیبل شاکر سے استفسار کرتے اندر بڑھے، جو نفی میں سر ہلائے ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ 42 سالہ خوبرو اور بہترین شخصیت کے مالک آج بھی اپنی عمر کے بڑھتے دریا کے باوجود تر و تازہ، پرجوش، پرعزم اور جواں ہمت مرد تھے۔ جلال، بہروز اور اکبر کی دوستی عمر کے لحاظ سے انفٹ ضرور تھی، کیونکہ جلال اور اکبر کی عمر میں لمبا فرق تھا، مگر دونوں کی دوستی کی نوعیت بھی بہت خوشگوار تھی۔ اکبر ان کے شروع میں یونی کے اسٹوڈنٹ تھے اور پھر وہیں سے ایسی دوستی ہوئی جو استاد اور طالب علم کے حصار سے نکل کر دو جگری بے تکلف یاروں کی اپنائیت اور محبت میں تبدیل ہو گئی۔ نہیں سر، میسنا ہے کمبخت، بس فیروز پور کا ہی بتایا اس نے، کہتا ہے باپ کا پتہ نہیں دے سکتا ورنہ وہ مار ڈالے گا۔ شاکر اکبر کے ہمراہ ہی اندر تھانے کی سمت بڑھا اور اکبر اب اس مریل سے انداز سے چٹائی پر بیٹھے شانی کو چٹتی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، مر آ گیا تو خواہ ہم پر سختی آ جائے گی۔ اس کے باپ نے DIG سے رابطہ کیا ہے تو یقیناً بڑے لمبے ہاتھ ہوں گے۔ میں خود اس کی خبر لیتا ہوں، دروازہ کھولو۔ ابھی اکبر سیدھے DIG کے دفتر سے ہی آ رہے تھے، جہاں سے ان کو اس شانی کی ضمانت کی درخواست کا علم ہوا تھا، مگر کسی وجہ کے باعث ضمانت فی الحال منظور نہیں کی گئی تھی، اور اکبر چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اس کا باپ قانون پر مزید زور ڈالتا، اکبر اس سے عصمت اور اس کے باپ کا پتہ جاننا چاہتے تھے۔ اکبر کی اس ساری بات کو شانی ادمرہ ہو کر بھی سن چکا تھا، تبھی ایک شاطر سی ہنسی لیے وہ سنجیدہ اور تپے برہمی انداز میں جیل کا دروازہ کھول کر اندر آتے انسپکٹر کو مزید تیش دلا چکا تھا۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بتا دو عصمت کہاں ہے؟ کراچی کے ارد گرد ملحقہ علاقوں میں کس جگہ ہے تمہارا گھر؟ دیکھو اصل مجرم وہ عورت ہے اور تم خوامخواہ اس کیس کو اپنے لیے وبال بنا رہے ہو۔ بتا دو اپنے گھر کا پتہ۔ اکبر نے دونوں ہاتھوں سے پتلون ڈھیلی کی، اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا زخموں سے چور منہ دیکھ کر فیصلہ کن دھمکی میں کہا، مگر شانی تو نہایت ہی کوئی ڈھیٹ شے تھا۔ جا کر ڈھونڈ لے انسپکٹر، میں تو نہیں بتاؤں گا، اور ابا مجھے نکلوا ہی لے گا، پھر دیکھنا نہ وہ ایمل بچے گی نہ اس کا خاندان۔ شانی بھلے زخموں سے چور تھا، پر اس کی اکڑ اور اس دھمکی پر اکبر کا ماتھا بھی شکن آلود ہوا۔ جی تو ان کو یہی چاہا اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتے، مگر اس وقت ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ جتنا یہ معاملہ سیدھا لگ رہا تھا، اب اکبر کو تشویش تھی کہ یہ معاملہ آگے پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ بچے تیرا واسطہ بڑے غلط بندے سے پڑ گیا ہے۔ انسپکٹر اکبر وہ نام ہے، جب تک مجرم کے حلق سے جرم کا اعتراف گھسیڑ کر نہ نکال لوں تب تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ دیکھ لوں گا تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی۔ اکبر نے بڑے ضبط سے اپنا آتش فشاں غصہ روکا اور وہ ابھی بھی زخم وجود منہ سے ہنس رہا تھا۔ اکبر نے اٹھ کر ایک آزردہ نگاہ اس پر ڈالی اور زہریلے شانی کو دیکھا اور باہر کی سمت بڑھ گئے۔ کانسٹیبل دروازہ بند کرتا پیچھے ہی گیا، کیونکہ اکبر نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ شاکر تم اپنی ٹیم کے 3 لوگ لے کر فیروز پور نکلو۔ فیروز پور کا ناظم کون ہے یہ تم لوگوں کو وہاں جا کر آسانی سے پتہ چل جائے گا۔
जरूर अजमत उसी के पास छुपी है। सुबह होते ही तुम लोग रवाना हो जाओ। मुझे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं है इन पस्त ज़हनियत के लोगों से। ये लोग इस छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बनाएंगे और यह भी मुमकिन है कि इस केस के साथ साथ हमें बैठे बिठाए कुछ नया मिल जाए। अकबर अपने चेहरे का इंतशार जब्त किए शाकिर नामी आदमी को हिदायत देते सोच में गर्क थे। अलबत्ता शाकिर ने इस बात में सर हिलाया और इशारा मिलते ही बाहर चल पड़ा। फेरोजपुर का नाजिम और फेरोजपुर का इंस्पेक्टर ये जिक्र पहले भी सुना है, पर कहाँ? कुछ तो है जो छुपा है। अकबर इस वक्त इन तमाम हालात पर गहरी गौर फिक्र कर रहे थे और यकीनन जल्द अपनी दूर अंदेशी के कायल भी होने वाले थे। अपनी 15 साल पुलिस फोर्स के दौरान और इस पुलिस के इदारे में अकबर वदूद के हाथ से कोई चोर बिना सजा पाए नहीं निकला था, तो फिर ये तो गुंडा मवाली और किडनैपर था। ऊपर से रिश्वत और सिफारशी उसका बाप, जिस पर अकबर को वैसे भी शदीद अताब था। देखना यह था कि मामला अब कहाँ और किस हद तक जाने वाला है। रात में बहुत उलझा हुआ था अलीम बाबा, तभी आपकी बात दानिस्ता नहीं सुन पाया। आप कहिए क्या कहना था? फजर की नमाज अदा करने के बाद वो गहरे भूरे सूट पर स्याह चादर डाले महकते लान में खड़ा किसी गैर मरे नुक्ते पर निगाहें जमाए खड़ा था। अलीम बाबा से किसी रोबोट की तरह मुखातिब था, जो हमान की इस बेअतनाई पर उससे ज्यादा उदासी में लिपटे उस तक पहुंचे और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके सामने हुए। हमें अपनी ख्वाहिशात को दूसरों की ख्वाहिश के लिए महदूद करना पड़ता है। जब कोई हमें समझे ही ना तो फिर बहुत सी ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना पड़ता है। बहुत से ख्वाबों को आंखों में दफन करना पड़ता है। जहां हमारी जगह नहीं होती वहां से खुद को खींच खांच कर निकालना पड़ता है। आंसुओं को ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अजियत को पैरों तले कुचलना पड़ता है। मसनूई सी मुस्कुराहट होंठों पर सजानी पड़ती है। ख्वामखा कह कहे लगाकर खुद को जिंदा साबित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जिंदगी गुजरती है, क्योंकि जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है। हमारे ने बहुत तहम्मुल से बाबा की ये तमहीद सुनी और तल्ख और दिल खराश सी मुस्कान यूं दी कि उसमें जिगर काट देने की कुव्वत मौजज़न थी। आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जिसने ख्वाहिश करनी सीखी ही नहीं, वो जो सिर्फ दूसरों को समझते आया है। हाँ, जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है, मगर ये जब पहले से ही इतनी मुश्किल हो तो ऐसे बोझ लाद देने से नागजीर होने लगती है। मैं आपको क्या बताऊं बाबा, वो कैसी पागल है और आप मुझे भी जानते हैं कि ऐसा ताल्लुक आपके अजीज बच्चे को सिर्फ एट द एंड खालीपन और तकलीफ देगा। उसे तो मैं अमान दे दूंगा, फिर मुझे कौन देगा? हमान के लहजे में यासियत और नमकीनी उमड़ी और वह तासुब से ये कहकर रुख फेरता हुआ अलीम बाबा को भी पत्थर कर चुका था। वो कुछ देर हस्बे मंशा सी खामोशी के संग हमान के लफ्जों को परखते रहे और फिर उसकी सिमत देखने लगे, जो बज़ाहिर दिखाई देती जंग के अलावा भी किसी और मुश्किल में पेवस्त लगा। मोहब्बत तो नहीं कर बैठे हमान? बाबा के इस सवाल पर हमान के वजूद को एक सनसनी ने घेर लिया और वह सख्त झुंझलाकर अलीम बाबा की सिमत तशना सी निगाहें गाड़े देखने लगा, जैसे अपनी हार का कोई जवाब तलाश रहा हो। और अलीम बाबा उसकी हर खामोशी को भी समझते थे। नहीं करना चाहता था, न करना चाहता हूँ, मगर आई एम होपलेस। मैं ठीक नहीं हूँ। कोई मेरी कंडीशन नहीं समझ रहा। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। हमान ने अपने तने आसाब ने ढाल से बहाल किए कुछ कदम बढ़ाकर गुलाब के पौधे पर लगे अधखिले से फूल को छूकर बेबसी से कहा, मोहब्बत को पाने वाले तो झूमते हैं, खुशियां मनाते हैं। तुम क्यों इसे रोग बना रहे हो मेरे बच्चे? फिर से समात में बाबा की तशफ़ी ज़दा गुजारिश और सवाल ने हमान को पलटने पर मजबूर किया। दोनों के चेहरे थकन ज़दा हो चुके थे। आप पूछ रहे हैं ये बाबा? एक आप ही तो मुझे समझते हैं। ऐसी मोहब्बत पाकर कौन झूमेगा जो मेरा अभी से सब छीन रही है। मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ, क्योंकि इस बार बात सिर्फ अमान की नहीं होगी। हमान की जर्द निढाल सी आंखों में शिकायत उमड़ी और वो अपना दिल खोलकर बेरब्त सी सांसें लेता वहां से चला गया। और अलीम बाबा जो पहले ही निढाल थे, अब तो हमान की इस परेशानी ने उन्हें बेजान सा कर दिया। कुर्सी का बेमुश्किल सहारा लेकर बैठते अलीम बाबा सोच रहे थे कि मोहब्बत की ये कौन सी शक्ल थी जो हमान पर उतर रही है। ऐ रब्बे कायनात, मेरे हमान को आजमाने वाली नहीं बसाने वाली मोहब्बत अता कर। वो बच्चा आज पहली बार इस कदर ज़हनी दबाव में महसूस हुआ है। मेरे मालिक, उसे मत आजमाना। मोहब्बत पर आजमाया गया तो वो जो अमान देने आया है बिखर जाएगा। हाथ उठाकर शहर और सुबह के मिलने का ये वक्त कबूलियत जाने अलीम बाबा ने अपनी नम आंखों और भराई आवाज से जज्बाते और शफीक सी दुआ की। हमान के लिए वो पहले से ज्यादा फिक्रमंद थे। मुसलसल फोन की चिंगारती टोन बजे जा रही थी और वो जो जरा भंग पीकर सोई शानजे के कानों पर जूं रेंगी हो।
एक तो रात पढ़ते पढ़ते लेट होकर सोई थी और अब पता नहीं सुबह सुबह किसको आखिर आई थी जो काल पे काल करे जा रहा था। ये लड़की अब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। मुकम्मल तौर पर क्लब के लिए रेडी हुआ आली जूस का ग्लास लिए चलता हुआ लाउंज में आया और खफगी से बड़बड़ाया। 5 बार कॉल करने पर भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। आखिरकार छठी बार कॉल बजने पर मुकम्मल ब्लैंकेट में लिपटी किस्म आकर शानजे फाइनली जाग ही गई। वार क्लॉक पर नजर पड़ी तो 8:30 बज रहे थे। वो रोजाना 9 बजे तक उठती थी। मुंह बसोरते आंखें मलती हुई फोन तक पहुंची और आलियान का नाम देखकर मोहतरमा की खुबारी अब सख्त गुस्सा बनी। दिल तो यही किया कि फोन बंद कर दे, पर अब आंख दोबारा ना लगने के खदशे पर बेदिली से कॉल रिसीव की। कान से कॉल लगाते उसे सख्त जमाई आई जिसे रोकने की कोशिश की गई। दूसरी सिमत ऐसी गैर अहम तवज्जो पर बरहमी सी थी और आली मजीद शानजे को ऐसी ढील ना देने का मंसूबा बना रहा था। क्या है आपको आधा घंटा पहले क्यों जगा दिया? 2 बजे तो सोई थी, कौन सी मुसीबत आ गई? किसने हमला कर दिया? आली जो समझ रहा था कि शानजे उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है, उसकी सोई हुई सी आवाज सुनकर मोहतरम के दिल को तसल्ली हुई। तभी चेहरे पर मुस्कान सजाए वो उसकी बात पर शरीर हुआ। रोज अब तुम्हें माँ बदौलत जगाएंगे, अभी दूर से और बाद में। फोन लगते ही आली की बेतकल्लुफी और ऐसी मानी खैजी पर शानजे की सारी आंख खुल चुकी थी और चेहरा सुर्ख गुलाल होकर रह गया। मगर वो तो आफत था जो शानजे पर ही नाजिल होना था। शर्म नहीं आती आपको? बीवी नहीं हूं मैं आपकी अभी? तो ऐसी बातें ना ही करें और बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सुकून तबाह ना करें। बंद कर रही हूँ। शानजे फिर से हद कर रही थी और आली के चेहरे पर अब शरारत के बजाय संजीदगी उतर चुकी थी। बस थोड़े दिन है, फिर बताता हूँ कितनी शर्म है मुझे और कितनी नहीं। मैं तुम्हारे रवैये को बहुत गौर से नोट कर रहा हूँ और तुमसे इसका हिसाब लूंगा। शाम 5 बजे रेडी रहना। बाबा ने ज्वेलर से टाइम लिया है, सो आज ही ये काम मुकम्मल करना है। गुड बाय। आलियन को शानजे ने वाकई हर्ट किया था और आली उसे सख्त लहजे में ये कहते ही राब्ता मुनक़ता कर गया और शानजे कटी काल को फटी आंखों से देखती रह गई। वाकई उसे अपनी ओवर एक्टिंग बुरी महसूस हुई और दिल चाहा कि कॉल बैक करे, मगर तो थोड़ी अना शानजे में भी थी, जो यकीनन आली की जगह कोई और टिपिकल मर्द होता तो नुकसान कर चुकी होती। आली के अच्छेपन को शानजे अभी अपनी बेवकूफ़ी से समझने की कोशिश तक नहीं कर रही थी और मुलाकात का सोचकर उसे वैसे भी उलझन हुई। दिल में वो शाम को आली से सॉरी करने का इरादा किए उठकर फ्रेश होने चली गई। दूसरी सिमत एमल भी ममा और बाबा के साथ फूले मुंह के साथ जूस पीने के दौरान बैठी रही और फिर बिना दोनों से बात किए यूनिवर्सिटी की जानिब निकल गई। एमल की चुप को सो सुख समझने की गलती मुमकिन था फैसल और मानिया के अलावा इस फैसले को करने वाले हर फर्द को महंगी पड़ जाती। वाह एली, आपने तो आज मजेदार पास्ता बनाया। मेरी तरफ से 100 मार्क्स। हमी आप भी ट्राई करें ना। नाश्ते पर रेहान, हमान और अलीम बाबा थे और हूर भी हमी के साथ ही बैठी अब मजेदार से नाश्ते को सराहती हुई स्पून में पास्ता भरे हमी की जानिब बढ़ा रही थी, जिसे हमान ने फौरी तौर पर खा लिया। हानिया भी सबको मुलाजमा के साथ नाश्ता सर्व करती मुस्कुराई, मगर आज सभी हमान की एक्स्ट्रा संजीदगी नोटिस कर रहे थे, वरना नॉर्मली इस वक्त हूर के होते हुए हमी और हूर जरा चुप करके नहीं बैठते थे। डार्क ग्रे पैंट पर ब्लैक शर्ट और ग्रे वास्कट और डार्क ग्रे ही टाई वास्कट के बीच जमाए हमान इस वक्त चेहरे की तनाव ज़्यादा संजीदगी से मिलकर खासा डैशिंग लग रहा था। गहरे रंग वैसे भी उसके सुर्ख और सफेद रंग पर मजीद आफतनाक लगते थे। अच्छा है ना? हूर ने एक और स्पून उसकी जानिब बढ़ाते हुए मासूमियत से पूछा और वह सर हिलाए उसका गाल दबाता जबरदस्ती सा मुस्कुराकर उसे मुतमईन कर चुका था। अलबत्ता रेहान, हानिया और अलीम बाबा संजीदा से हमान की खामोशी पर फिक्रमंद थे। मैं जानता हूँ आप सब मेरी खामोशी से फिक्रमंद हैं, लेकिन इत्मीनान रखें, मैं अब अपने फैसले से नहीं मुकरूंगा। शादी की जो तैयारी है वो आप सब हैंडल कर ले, मुझे किसी मामले में शामिल नहीं होना। आप सबको जो मुनासिब लगे आप वो कर लें और मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। मेरा गुस्सा जल्द उतर जाएगा, थोड़ा वक्त दें। हूर वापसी पर तुम्हें पेंडिंग आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, रेडी रहना। मैं निकलता हूँ, देर हो जाएगी। सपाट से मगर मुतमईन अंदाज में हमान ने सबके संजीदा चेहरे जांचे और अब बाहर की जानिब बढ़ गया। हानिया अफसुर्दा थी क्योंकि वो हमान गुस्सा नहीं हर्ट था और वो उसकी इस पत्थर सी बातों पर थोड़ी बुझ गई। हूर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर बाकी सबके उदास तासुरात देखकर वो भी उदास हुई और हमान के साथ ही उसे बाहर तक सीफ ऑफ करने चली गई। बहुत नाराज है हमी, हानिया ने सख्त बेचैनी से रेहान के साथ बैठते हुए दोनों को जाते देखकर कहा, जिस पर रेहान और अलीम बाबा के चेहरे पर भी तशवीश छा चुकी थी। हूर जो हमान को बाहर तक छोड़ने आई, हमान की गाड़ी में बैठने से पहले उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़े मतवज्जा कर चुकी थी।
वो भी अपनी इस प्रिंसेस के मासूम उदास पोज भांपता अब असल मुस्कुराते हुए उसके कदमों में बैठा और बैठने की देर थी कि हूर ने अपनी दोनों बाजू हमान की गर्दन में डाले उससे लिपट गई। हमान ने भी हूर की इस मोहब्बत के बदले उसके गिर्द बाजू बांधे उसे अलग किया, उसके गालों पर प्यार किया। आप उदास मत हो हमी, देखिएगा एमल आपी भी आपको बिल्कुल हूर जैसे प्यार करने लगेंगी। सच्ची बताऊं तो मुझे जेलस तो फील होगा लेकिन अच्छा भी लगेगा। आपको पता है आपसे जुड़ा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे आपसे प्यार ना हो। आप इसीलिए उदास ना हो कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगी, देखना हूर से भी ज्यादा करेंगी, मान लेना। हूर की इस मासूमियत पर हमान उसे देखता ही रह गया। क्या बताता कि किस मुश्किल में फंसा दिया गया है। हूर तो अपनी अकल के मुताबिक सोच कर भी कहीं ना कहीं दुरुस्त ही थी और हमान फिर से उसका खुदमा सुमाई चेहरे पर अंधेरा ला चुका था। हूर मैं उदास नहीं हूं, ना आपके हमी को किसी का प्यार चाहिए। मैं बस थोड़ा गुस्सा हूं कि सबने मेरी जिंदगी का फैसला खुद ले लिया। हमान उसे उसी के अंदाज में समझाते हुए बोला और हूर बड़े ध्यान से हमान के चेहरे का हर तल्ख जाविया परख रही थी। सब बड़े भी तो हैं हमी, देखे ना, जैसे मम्मी बाबा मेरे बारे में हर फैसला खुद लेते। हूर कौन से स्कूल जाएगी, हूर क्या खाएगी, हूर कैसे पढ़ेगी, सब। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है सच्ची। आई नो वही गुस्सा आपको आ रहा है। आप भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना तो गुस्सा उड़ जाएगा सच्ची। आई लव यू हमी। हूर आपको ऐसे गुस्से वाला और उदास नहीं देख सकती। अपने दोनों नाजुक से हाथ वो हमी की गालों पर रखे मासूमियत से हमान की हर उदासी हटा रही थी और हमान भी मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूम कर उसी के अंदाज में हल्का फुल्का सा उसे मुतमईन कर चुका था। हमान की मुस्कुराहट पर हूर की तो खोई हुई जान लौट आई थी। आई लव यू टू मेरी जान, मेरा बच्चा, बस तुम हो तो हमी ना गुस्सा करेंगे ना उदास होंगे। नाउ हैप्पी मेरी गुड़िया। थैंक यू हमी को हमेशा मुस्कुराहट देने के लिए। हमान की आंखें उस बच्ची की कोशिश पर वापस चमक उठी और फिर से मामू भांजी ने जोरदार हक की और एक दूसरे पर अपनी सारी की सारी मोहब्बत लुटा डाली। हमान मुकम्मल में नहीं, अलबत्ता थोड़ा बेहतर जरूर हो गया था। यार मेरा तो मुंह सूजना बनता है क्योंकि बाबा और मम्मा ने पता नहीं किस डंगर को मेरे लिए चुन लिया है, पर तुझे कौन सी तकलीफ है जो मुंह बिगाड़ा हुआ है। आली भैया इतने प्यारे तो हैं यार, बस कर दे अब। हमान आज पूरी क्लास को टेस्ट देने में बिजी था और शानजे और एमल क्लास के बीच भी पटर पटर करती जा रही थी। हमान दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स के साथ काम में पूरी तरह मुनहमिक होकर भी कुछ फासले पर बातें करती एमल और शानजे को भी सरसरी सा गाहे बगाहे देख रहा था। यार दरअसल सुबह मैंने थोड़ी बदतहजीबी कर दी थी, डांट दिया था। अब दिल चाह रहा है शाम को सॉरी कर लूं, पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है उसके सामने। एमल के लिए शानजे के गैर यकीनी तासुरात अचंभे की बात थे। तभी वो उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश करती मुस्कुराई और हमान जो कुछ फीमेल स्टूडेंट्स को कुछ समझाने में बिजी था, कनखियों से एमल को देखने लगा जो शानजे को न जाने कौन सी तसल्ली देने में मगन थी। ठीक है ना मेरी जान, सॉरी कर लेना, मानती हूँ वो अच्छे जन-मुरीद बनेंगे, पर तुझ पर भी थोड़ी शुरू शुरू में कदर लाजिम है। ये ना हो बेचारे तेरे चुंगल में फंसने से पहले ही फरार हो जाए। मुसरत की तेज लहर ने एमल के शरारती चेहरे पर सिमट कर शानजे तक को भी मुस्कुराहट दी। अलबत्ता अब एमल रुख फेर कर सामने बैठे हमान को देखने लगी, जिससे एक लड़की ख्वामखा करीब करीब होकर बैठती हुई एमल को न जाने क्यों तप चढ़ा गई। एमल के मिजाज का चिड़चिड़ापन आज सरे नो जाकर वो अपने नोट्स और पेन उठाए खुद भी शानजे को आंख मार कर जाकर हमान और उस लड़की के बिल्कुल साथ बीच में जा बैठी, जिस पर वो मॉडर्न सी चिपकू लड़की ने नाक चढ़ाकर एमल की इस हरकत पर बरहमी का इजहार किया, जबकि हमान भी बड़े गौर से एमल का यूं पास आकर बैठना देखकर हैरान था। इनकी शादी होने वाली है टीना, ज्यादा मत चिपको वरना इनकी बीवी को बुरा लग जाएगा, है ना हमान सर। एमल ने मसनूई शौकी से उस साथ बैठी टीना के साथ साथ हमान को भी चौंका दिया, जो एमल का खुद की तरफ बरहमी से देखना इग्नोर किए अपना काम जारी रखे हुए था। क्या वाकई सर आप शादी कर रहे हैं? टीना का तो लगता था दिल ही फट सा गया है और वो सख्त तासुब से हमान से पूछकर बेकरार हुई और हमान ने एक खफा सी नजर एमल पर डाली और बिना टीना को जवाब दिए उसे उसके नोट्स वापस देकर जाने को कहा और वो यही समझकर खुश हो गई कि ये मजाक है। अब हमान की खूंखार नजर एमल पर थी जो उसके पास बैठी मजे से मुस्कुरा रही थी। शानजे भी अपने काम में मगन हो चुकी थी और अब हमान के साथ सिर्फ एमल बैठी नोट्स पर ही कार्टून बना रही थी और हमान उस लड़की की हल्की फुल्की जेलसी को समझने की कोशिश में उसके चेहरे के नकूश पर मरकूज किए हुए निगाहें ऐसी जालिम मिली कि हमान को खुद ही हटानी पड़ी। बेचारी तुम्हारी होने वाली वाइफ, सच्ची मुझे तो रातों को नींद नहीं आती उस नमानी का दुख महसूस करके। वैसे बाय द वे मेरी भी एक प्रिंस से शादी होने वाली है। ही इज लकी मैन।
ایمل نے تفاخر سے اپنی گردن اکڑائی، جو کہا وہ حمان سے ہضم کرنا ناقابل برداشت ہوا، اور وہ جو برہم بیٹھا تھا وہ مشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ ہاں پرنس، تو کون سے ملک کا پرنس چنا ہے تم نے؟ حمان نے لطف اندوز ہوئے بظاہر سخت سنجیدہ منہ بنائے پوچھا، جس پر ایمل نے گڑبڑا کر نظر چرائی، خجالت سے سر کھجانے لگی۔ ایمل کی بچی، ابھی تو نے اس ڈنگر کو دیکھا بھی نہیں، یہ نہ ہو تجھے اپنے الفاظ پر شرمندہ ہونا پڑے۔ کچھ بات بنا فوراً خود کے سنگ بڑبڑاتی ایمل پر اس وقت حمان کو پیار سا آیا، یقیناً وہ کہیں سے بہت معصوم بھی تھی۔ کینیا کا پرنس، لیکن ہی از لکی کیونکہ ایمل اس کی ہوگی۔ بائی دا وے، تم مجھے اپنی وائف سے لازمی ملوانا، میں اس پھوٹی قسمت والی سے لازمی ملنا چاہوں گی، اور تب تک اس کے بہاف پر تم پر نظر رکھوں گی۔ خبردار جو تم اس چھچوری ٹینا کے ساتھ چپکے نظر آئے۔ مسلسل بولتی ہوئی وہ اپنے چہرے کے ہر پوز بناتے ہوئے اترائی اور کبھی دادی اماں کی طرح برہمی سے حمان پر رعب جماتی ہوئی بولی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ ہنسے یا اس لڑکی کی معصومیت پر تکلیف محسوس کرے۔ یوں لگا وہ بولتی جا رہی تھی اور حمان کو آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی۔ اوکے فائن، ضرور ملواؤں گا تمہیں، اسے بھی تو پتا چلے کہ کینیا کی پرنسس کیسی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو نارمل کرتا حمان دانستہ استہزائیہ ہوا۔ ایمل کی ناک پر ازلی غصہ لا چکا تھا اور وہ اس پر ابھی غصہ کرنے کے موڈ میں نہ تھی، تبھی منہ پھلایا اپنے کارٹون کو مکمل کرنے لگی۔ چٹے باندر والی اسائنمنٹ تو بیچاری راستے میں ہی فنا ہو گئی تھی، نہ حمان نے اس کا ذکر چھیڑا تھا نہ ایمل نے۔ اچھا مجھے یہ والا پرابلم سالو کر کے دو گینڈے، اس کارٹون میں کون سی کمی ہے کہ اسے پورا کروں تو یہ حمان افندی بن جائے۔ ایمل نے نہایت سنجیدہ منہ بنائے اپنے نوٹس پر بنائے پنک پینتھر کی ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھ بنائے پوچھا، اور حمان منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی ضبط کرتا آج ایمل کی نگاہوں میں آیا، اور یہ ایک لمحہ تھا کہ ایمل کو لگا ہر شے تھم گئی ہے۔ اس میں اور مجھ میں کچھ نہیں ملتا سوائے بڑی شیو کے۔ حمان کی نارمل سی شریر بات پر ایمل بھی مصنوعی سا منہ پھیرے مسکرا دی، اور اس پنک پینتھر کے ساتھ حمان لکھتے ہی وہ پیج پھاڑ کر حمان کو تھماتی شرارت سے اٹھ کر واپس اپنی جگہ شانزے کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ دیر دونوں بھینی بھینی سی مسکان سے ایک دوسرے کی سمت دیکھتے رہے، اور پھر ایمل شانزے کے ساتھ جبکہ حمان پھر سے مزید کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ بیزی ہو گیا۔ البتہ وہ سکیچ جو ایمل کے بقول وہ تھا، اسے مسکراتے ہوئے اس نے فولڈ کیے بک کے بیچ رکھ دیا۔ آج پہلی بار تھا کہ دونوں نے لڑائی تو کی تھی پر ہنسی والی۔ حمان جس موڈ سے آج یونی آیا تھا اب بالکل بدل گیا تھا۔ پچھلے 20 منٹ سے علی چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا، اور شانزے اس کی اس چپ کو پرکھتی ہوئی کبھی رخ پھیر کر اسے دیکھتی تو اپنے رویے کے برے ہونے کا احساس از سر نو جاگ جاتا۔ جو بھی تھا علی ایسے رویے کا مستحق نہ تھا۔ چاکلیٹی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، ڈارک گرے کوٹ جو اس نے اتار کر گود میں رکھ رکھا تھا، سرسری سا باہر کے ملکجے اندھیرے کو دیکھ کر شانے کو مکمل اگنور کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری صبح کے لیے۔ آخرکار نہ جانے کہاں سے ہمت جمع کیے شانزے نے یہ اہم فریضہ سر انجام دے ڈالا، اور وہ جو ایسے الفاظ کی قطعاً امید نہ رکھتا تھا بے یقینی سے اپنی سمت دیکھتی شانزے کو دیکھنے لگا، جو واقعی اپنے رویے پر نادم لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے بس اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں محبت کرنی تو سرے سے نہیں آتی، اس کے ساتھ ساتھ میری محبت کی قدر بھی نہیں آ پا رہی۔ میں کوئی ایسا ویسا گلی چھاپ نہیں ہوں جو تم مجھ سے ایسی تضحیق سے بات کرو۔ سیدھا سبھاؤ تم سے محبت سے حلال رشتہ چنا ہے، مگر تم… خیر دیکھ لوں گا۔ عالیان کے لہجے میں کھارا پن تھا، اور شانزے اس کے نروٹھے پن پر ہونٹ دانتوں میں دبائے پشیمان سی باہر جھانکنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب شانزے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو علی نے گاڑی روکی، اور اس کے گاڑی روکنے پر شانزے نے بوکھلا کر گردن موڑے اپنی سمت دیکھتے علی کو دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ آئی نو تم مجھ پر غصہ ہو، بنتا بھی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں تمہاری الجھن دور کر کے تمہیں اس زبردستی کی قید سے رہائی دے سکوں۔ علی نے عین اس کی متذبذب آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ سے لہجے میں استفسار کیا، اور شانزے اس کے چہرے کی سمت دیکھتے دیکھتے نظر جھکا گئی۔ اپنے ہاتھوں کو برے طریقے سے مسلتی ہوئی علی سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ جو شادی تک اسے نہ چھونے کا ارادہ کر بیٹھا تھا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت جھٹکا دیے، اور اس کا رخ اپنی سمت موڑ گیا، اور وہ بھی اس خطرناک اچانک افتاد پر عین روبرو ہوتی جم سی گئی۔ کئی انکہے شکوے تھے جو وہ علی کی مٹھاس والی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے ریئیکٹ کروں۔ میں کسی میں انٹرسٹڈ نہیں، میں آگے سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اپنی بلا کی پرکشش آنکھیں تعصب سے پھیلائے وہ علی کا دل ایک لمحے کی معذرت زدہ رنگ سے مٹھی میں دبوچ چکی تھی، اور علی کے چہرے کی واپس آتی چمک اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ اس نے شانزے کی بدتہذیبی درگزر کر دی ہے۔ تم بدتمیزی کر سکتی ہو، ایشو نہیں، تم سب کر سکتی ہو شانزے، لیکن میرے دل کو تکلیف مت دینا، اور میرے دل کو تکلیف تب ہوگی
जब तुम मेरी मोहब्बत को बेमोल समझोगी। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हें इस दुनिया का हर सुख और मोहब्बत का हर करार देना चाहता हूँ। मुझसे मोहब्बत भले मत करो, लेकिन मेरे जज्बों को कबूल करो। उफ, वो बात करते हुए शानजे को भी अपने शहर में जकड़ गया था। दोनों की दहकती हुस्न से लबरेज आंखें मिली तो लगा ये नाता तो नया नहीं बल्कि कदीम सा है। वो अपने लहजे की रसानियत में चाह की चाशनी मिलाए जज्बातियत से अपना दिल खोल बैठा था, और शानजे कितनी ही देर बदहवास सी कुछ कहने के काबिल ना रही। हाथ छोड़ दें प्लीज। शानजे का दिल बुरी तरह कांपा जब आली ने उसका हाथ अपने होठों से छूना चाहा, और उसके बीच ही शानजे की घबराई सी गुजारिश पर वो मुस्कुराकर कुछ पल उसके चेहरे पर लिखी सुर्खी को दिल में उतारता रहा, और फिर पूरी शराफत से उसे रिहाई दे दी। शानजे तो यूं थी कि उसके जिस्म का सारा लहू ही चेहरे पर आ छलका हो। ये साथ बैठा आग का गोला उसे अभी से कपकपी में मुब्तला कर चुका था। इसके बाद आली का मूड हसीन तर ही रहा। सारी ज्वेलरी आली ने ही पसंद की थी, और चूंकि दिन कम थे लिहाजा ज्वेलरी वाला सारा काम वो आज फाइनल कर चुके थे। हमान का मूड शाम को वाकई काफी रिलैक्स था, और वादे के मुताबिक हूर मैडम पहले ही रेडी थी, क्योंकि हमी और वो आइसक्रीम खाने का प्लान बना चुके थे। जबकि दूसरी सिमत शानजे के बिना एमल का दिल भी घर नहीं लगा था, और वो भी आइसक्रीम खाने अकेली ही निकल गई थी। शानजे और आली ने रात का डिनर भी साथ ही करना था, लिहाजा एमल अपनी बोरियत दूर करने कुछ दूर ही कैफे गई। लाइट ऑरेंज टी शर्ट और वाइट पैंट पहने, जैकेट डाले, वो अपना फोन मेज पर रखे बैठी आइसक्रीम के बजाय एक कैपेचिनो ऑर्डर कर चुकी थी। एमल आपी, किसी बचगाना सी आवाज पर एमल जो अपने फोन में पूरे इन्हमाक से गुम थी चौंक कर मुड़ी तो सामने ही हूर को देखकर हैरत ज़दा हुई। पहले तो एमल को थोड़ा अजीब लगा, और फिर वो अपने करीब आकर हाथ फैलाती हूर की सिमत जबरन मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा चुकी थी। हूर के चेहरे पर इस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट दर्ज थी, और एमल की निगाहें इधर उधर किसी की तलाश में घूमते हुए काउंटर पर वेटर से बात करते हमान की पुश्त पर गई, और दिल को अनदेखी तसल्ली ने घेरा। कैसी हो आप? एमल को लगा कि अब उस बच्ची ने अगर इस कदर प्यार से हाथ मिलाया ही है तो वो भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करे। हमान जो काउंटर से वापस मुड़ा, सामने हूर और एमल को देखकर उसके चेहरे पर फिक्र सी उमड़ी, और वो उसी तरफ बढ़ा। मैं बिल्कुल फिट और आप, मैं हमी के साथ आई हूँ। ये रहे हमी। दरअसल आइसक्रीम खानी थी ना, तो क्या आप भी यहाँ आइसक्रीम खाने आई हैं? हूर बच्ची होकर ऐसी बेतकल्लुफ थी, और वो इतनी बड़ी होकर भी सिमटी सी कभी हूर का कॉन्फिडेंस देख रही थी, और कभी वहीं साथ वाली चेयर पर आकर विराजमान होते हमान को, जो हूर की बात पर अब मुस्कुरा तो रहा था मगर उसकी खोजती निगाहें एमल पर मरकूज थी। मैं भी आइसक्रीम किलर हूँ, अक्सर यहाँ आती हूँ। मेरी शाने को तुम्हारे चाचू ले गए हैं, बस बोर हो रही थी। बाय द वे, आप कौन सी क्लास में है लिटिल गर्ल? एमल ने भी बीच की अजनबियत हटाते हुए हूर की सिमत देखकर शौक से पूछा, और हूर जो इतनी सी होकर लहजे परखने की माहिर थी, यूं एमल का उससे इस कदर अच्छे से बात करना सच्ची स्माइल दे गया था। हमान इस दौरान मुसलसल एमल के चेहरे और उसके हर अंदाज को देख रहा था। मैं 5th क्लास में। अरे आप ही बोर क्यों, हम हैं ना। ऐसा करते हैं, हम तीनों भी कुछ मजे का खाते हैं, और बिल हम ही देंगे। इतनी प्यारी और ऊपर से दादी अम्मा जैसी ये हूर तो एमल को भी अच्छी लगी, और वो आम बच्चों जैसी ना थी। एमल को बड़ी हैरत हुई कि वो उससे इस कदर फ्री बात कर रही थी। हमान ने हुक्म की तामील में एक तबस्सुम दिया, और वेटर को बुलाए हल्के फुल्के से डिनर का ऑर्डर कर दिया। एमल की नजर जब हमान से मिली तो वो उसी को देखता पाया गया। अजीब सा एहसास है जो एमल को हुआ, यूं जैसे उसकी बोरियत भी एकदम खत्म हो गई हो। दरअसल ये बड़ा फ्री बच्चा है। आई होप तुम मजीद बोर नहीं हो रही। हूर को मुसलसल एमी से बातें करता देखता हमान आखिरकार उस आफत की गाल पकड़े मुखातिब एमल से हुआ, जो उन दो के इस प्यार पर खुद भी मुस्कुरा दी। नो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर। चलो, कोई तो है जो तुम्हारी फैमिली में तुमसे मुख्तलिफ निकला। हूर, तुम्हारे मामू बहुत खड़ूस हैं, यू नो, इतना डांटते हैं यूनी में, इनकी पिटाई लगवाने का दिल करता है। एमल ने बिना झिझक हूर के सामने ही उसे तुम कहकर लताड़ा, जिस पर हमान के तासुरात कुछ देर तने, और आखिरी बात वो उस शरारती हूर से कहकर जता हमान को रही थी, जो अभी उस लड़की को कुछ कहना भी नहीं चाहता था। दोनों ही हूर के मुंह पर हाथ रखकर हंसने पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो खीखी करती निहायत प्यारी लग रही थी। नो नेवर, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे हमी वर्ल्ड के सबसे हम्बल और कूल टीचर हैं एमल आपी, और आप मेरे हमी को पिटाई ना लगवाएं प्लीज, ये बहुत इनोसेंट है। मुझे अब आप भी बहुत अच्छी लगती हैं एमल आपी, आप भी मुझसे पक्की वाली फ्रेंडशिप कर ले। हूर जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसने का शुगल खत्म किए बोलते ही छा गई। हमी तो उसकी बातों पर उसे प्यार से देख रहा था, अलबत्ता एमल को इन बातों का हजम करना कठिन लगा, और हमान उसकी खिसियानी हंसी बखूबी देखकर किसी गहरी सोच में था। एमल उसकी आखिरी बात पर प्यार से उसके दोनों बाजू पकड़कर हाथ थामती
उसके गाल पर प्यार दिए खुद हूर को हैरान कर गई। क्यों नहीं, पक्की वाली फ्रेंडशिप हो गई। क्यों मिस्टर हमान, कोई एतराज तो नहीं? एमल ने जानबूझकर शरीर अंदाज में कहा। हमान जो कि रिजर्व होकर बैठा था उसने कंधे उचकाए। हूर तो हंस दी, अलबत्ता एमल की निगाहें हमान के चेहरे पर ही जा टिकी। हमान ने आज एमल का एक तीसरा रूप देखा था। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुल रही थी, मगर अभी भी हमान हनूज अपनी उलझन में मुब्तला था। यहाँ होकर भी वो यहाँ ना रहा। आने वाले वक्त की सख्ती हमान को तल्ख संजीदगी में जागजी कर चुकी थी। गो ये मुलाकातें बेहतरी की सिमत गामसन थी, पर अभी असल तूफान आना बाकी था। क्या हम यूं ही दरबदर रहेंगे अम्मा? क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? जानबूझकर तूने हम पर छत तंग कर ली, और ये जो तेरे मुंह बोले अपने हैं हमारी पीठ पीछे हमें कोसते हैं। मेरी मान तो चल वापस, माफी मांग लेना। ये मोहताजी की जिंदगी मुझे गवारा नहीं। शाहजहां ने अजमत को भले रहने के लिए अच्छा और साफ कमरा दिया था, मगर नूर को उन लोगों के सर्द रवैये से सख्त दुख हुआ था। हर कोई उन दो को इस तरह घूरता था जैसे न जाने वो कौन सी गुनहगार हो। नूर इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में 12वीं की तालबा थी। शक्लो सूरत की हरगिज मामूली तो ना थी। मध्यम गंदमी पुरकशिश रंग उसके कुंदन रूप पर भला तरीन लगता था। अजमत जो पलंग पर चित लेटी गहरी सोच में थी, नूर की इस दिल बर्दाश्ता बात पर उसे घूरती हुई उठ बैठी। बस कर दे नूर, आगे ही मेरा दिमाग तपा है और मत सुलगा। ऐसा क्या गलत किया है बोल? तुझे अपनी अम्मा की फिक्र नहीं? मर जाती तो तेरा क्या होता, सोचा है? बैठे बिठाए मेरी भी मत मर गई थी जो ये करके अपने बुढ़ापा और बेइज्जत करवा बैठी। यहाँ से कहाँ जाएंगे बोल? पुलिस पकड़कर जेल में चक्की पिसवाएगी। यहाँ रशीद भाई के साए में कम से कम महफूज तो है। मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र है। वो शानी आ जाए बाहर और तुझे बीवी बना ले, फिर मैं चैन से वापस चली जाऊं। अजमत जो अब खुद सख्त दिल बर्दाश्ता सी बेचारी नूर को तब कर झाड़ गई। खुद उसके लहजे में अब खौफ था। शानी के जिक्र पर तो नूर का दिल जलकर खाक हो गया। एक नंबर का उबाश जिसने कितनी बार नूर का खबासत से हाथ पकड़ने की कोशिश की। नूर को तो उसका नाम सुनकर ही उबकाई आ रही थी। उसके नजदीक मौत मंजूर थी, पर शानी से शादी करने वाला अजाब नहीं। वो फटी फटी आंखों से अजमत की सिमत देखते हुए नफी में सर हिलाकर उसे मजीद तैश दिला चुकी थी। तुझे कितनी बार कहा है अम्मा, मार दे अपने हाथों से, पर उस शानी का नाम मेरे साथ मत लिया कर। मुझे किसी से भी बांध दे, पर यह जुल्म ना करना। जाने के लिए अल्लाह की ज़मीन बहुत है। मैं नहीं रह सकती यहाँ अम्मा, तू जानती है मेरा दम घुट जाएगा। सर्द पड़ती वो दर्द से कपकपाती नूर की इल्तिजा को चंदा अहमियत ना देती अजमत नखुवतपन से अपनी टांग छुड़वाकर करवट बदल गई। मर जा, सो जा, दिमाग मत चाट। सख्त इश्तियाल के संग अजमत ने नूर को बेइतनाई से डांट दिया। नूर जो पहले ही निढाल थी, दूसरी सिमत लेटते ही रो दी। मैं ग्रहण ज़रा जिसके मुकद्दर में शायद हमेशा की तारीकी मुकर्रर कर दी गई है। कहीं भी रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही, मगर फिर भी मैं पुरुम्मीद हूँ कि कभी तो ऐसा होगा जब एक जगमगाता सितारा इस रात की स्याह चादर से निकलकर उफक पर चमकेगा और जिसकी रोशनी से ये ग्रहण ज़दा शब सुबह सादिक में बदल जाएगी। या अल्लाह मुझे उस शानी से बचा ले। अम्मा को एहसास दे, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। सब्र और हिम्मत का पेकर बनी नूर जो पहले खुद को उम्मीद दिलाती हुई पाई गई, इख्तिताम तक उसकी आंखों में माँ के सफाक रवैये की काट ने सीलन ज़दा शफक भर डाली। अकबर अपने घर के स्टडी में विराजमान कुछ केस की इंफॉर्मेशन पर गौर कर रहे थे। अकबर के भेजे अहलकार अपनी छानबीन शुरू कर चुके थे। ग्रे सूट में वो 42 साल की उम्र के बावजूद फिट, पुरकशिश और कवि लगते थे। जनाब ने इतनी उम्र के बावजूद शादी जैसा फरीजा सर अंजाम नहीं दिया था और ना कभी सोचा था। जलाल और उनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। बज़ाहिर वो जलाल से बहुत छोटे थे, मगर कहते हैं ना कि दोस्ती के लिए हम उम्र होना ज़रूरी नहीं। जलाल का उन दिनों अकबर के कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचिंग कोर्सेज के सेशन का इनकाद हुआ था, और यूं इन 3 माह के अरसे के बीच दोनों उस्ताद शागिर्द से होते होते जिगरी यार तक जा पहुंचे। जलाल अपने करियर की बुलंदी चढ़कर एक काबिल प्रिंसिपल बन गए और अकबर पुलिस में डायरेक्ट ASP तैनात हुए और अब इस्लामाबाद के हेड थाने के DSP थे। शुरू से अलग और कुछ कर दिखाने का जुनून लिए वो कानून के खतरनाक पेशे में गए जिसने उन्हें वैसे भी कुछ और करने के लिए मुयस्सर न छोड़ा। अपनी 42 साल जिंदगी में वो न जाने कितने मुजरिमों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा चुके थे, और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी था। वो किसी फाइल में बड़ी तवज्जो से मुनहमिक थे, तभी उनका सेल फोन बजा। कॉल रिसीव की दूसरी जानिब उन्हीं का भेजा हुआ आदमी था। सर नाजिम की मालूमात निकलवा ली हैं। रशीद नाम है, यहाँ फैरोजपुर में उसका घर तो पता चल गया है, मगर वो उसके ऑफिस का हिस्सा है। मैंने अपने तय पता करवाया है, वहाँ उसके घर वाले नहीं रहते। 2-3 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह उसके दूसरे आबाई घर का भी मालूम हो जाएगा।
वो आदमी फोन लगते ही अकबर को एक अच्छी खबर देकर मुतहरिक कर चुका था। इतनी जल्दी अच्छी खबर की अकबर को उम्मीद ना थी। वेल डन शाकिर, मुझे उस रशीद की सारी इन्फो चाहिए, और 2 दिन का मतलब 2 दिन होना चाहिए। ज्यादा देर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ भी मजीद पता चले तो मुझे इतला दो। अकबर ने उस आदमी को हिदायत दी और फोन बंद किया। अपनी उंगलियों की पोरों से कनपटी सहलाने लगे। जो भी था, जलाल से जुड़े हर फर्द की हिफाजत के साथ साथ अब कुछ मशकूक मुजरिमों से एहतसाब का भी वक्त हो गया था। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरे लिए जिंदगी का खूबसूरत असासा है। बस कुछ दिन तक मुझ मासूम को ये जबर सहना है। डिनर के दौरान भी शान से सिमटी सी दिखाई दी थी और अब वो गाड़ी वहीं रेस्टोरेंट के पास ही रोके खड़े थे। आली ने अपने साथ खड़ी शानजे को देखकर फिर से अपने जज्बात पेश किए। डार्क पर्पल शर्ट और रेनबो स्कर्ट में खुले बालों और गले में रोल करके डाला स्कार्फ लिए वो मध्यम से मेकअप में बहुत जाजिब और दिलफरेब लग रही थी। और उसके बाद शानजे ने तीखेपन से इस्तफहामिया हुए गर्दन मोड़ी, जिस पर आली ने मोहतरमा की बरहमी का सदका उतारा। उसके बाद तुम आलियान बहरोज की हो जाओगी, पूरी की पूरी। आलियान की आंखों में मिलन की ख्वाहिश का ठाठे मारता समंदर था, जिस पर शानजे बौखलाकर रुख मोड़ गई। वो उसके यूं गुरेज पर भी अपनी जान हार देना चाहता था। यह मोहब्बत ऐसी ही पगली तो होती है। मैं हर पहर तुम्हारा हाथ चूमा करूंगा, पुश्त नहीं हथेली, कि जहां किसी लकीर की ओट में मेरी सारी बेचैनियों का इलाज लिखा हुआ है, हमारा साथ लिखा हुआ है। आली ने मुलायमपन के संग अपना हाथ शानजे के हाथ में जकड़ कर अपने चेहरे से छूते हुए कहा, जो किसी सनसनीखेज लम्स के खदशे से ही अपना हाथ घबराकर खींचने लगी, मगर आली की शरारत पर वो मुंह बसोर कर रह गई। आप मेरा हाथ छोड़ें, आलियान कोई देख लेगा, क्या कर रहे हैं। शानजे को शदीद अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि कहीं ये बंदा अभी से शुरू ना हो जाए, मगर वो तो बिना किसी दुनिया की परवाह किए अपने हाथ में शानजे का हाथ दबाए हनूस चेहरे से लगाए उसको चाहत से देख रहा था, जो कभी बरहम तो कभी खफा होकर मजीद दिल लूट रही थी। ये हाथ आली कभी नहीं छोड़ेगा। अभी के लिए बस तुम्हें खुद से कुछ पल की निजात दे रहा हूँ। तुम हो ही ऐसी, जब दूर थी तो तुम्हें छूना तो दूर, ये ख्याल तक गुनाह लगता था। तभी तो 4 साल ये बंदा कुछ कह ना पाया, मगर अब भी तुम किसी फसूं की तरह हावी हो। करीब हो तो तुम्हें करीब तर कर लेने की आरजू बढ़ती जा रही है। आई होप शादी के बाद तुम इस दीवाने को तड़पाने की कोशिश नहीं करोगी, है ना। आलियान की दिल को दहलाती ये नाजुक बातें शानजे के तन मन में सनसनी और खौफ उतार रही थी। न जाने कैसे बेदिल सा होकर वो उसका हाथ छोड़ने पर मजबूर लगा, मगर हनूज वो उसके कंधे से कंधा मिलाए उसकी डरी बरहम आंखों में झांक कर बोला था। शानजे ने हड़बड़ाकर नजरें चुराई और अपने धड़कते दिल पर हैरान हुई। प्लीज आलियान, आप ऐसी अजीब बातें मत करें, आप मुझे डरा रहे हैं। शानजे ने रुहासे होकर सख्त चिढ़ते हुए शिकायत की, और उसने एक दिल शगाफ कहकहा लगाया था। आली के यूं हंस देने पर शानजे ने उसे घूर कर देखा, जो अब मस्कीन सी हंसी के संग अपने कान पकड़ चुका था। तुम मुझे मत डराना तो मैं भी नहीं डराऊंगा। यह मत भूलो कि तुम एक शेरनी हो। जस्ट किडिंग, यूं मुंह फुलाकर और प्यारी लगती हो। आली ने शरारत और गुदगुदी देते तबस्सुम के संग हिदायत दी, और शानजे का बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से भाग जाती। आलियान को भी लगा कि अब इतना तंग करना भी ठीक नहीं। चलो चलते हैं, ज्यादा तंग नहीं करूंगा अपनी जाने मन को। आली ने उसे जाने मन कह डाला, और शानजे के तो आली की ऐसी फ्री जुबान पर रोंगटे खड़े हुए और कान तप चुके थे। सख्त गुस्सा दिखाती वो दूसरी सिमत से गाड़ी में जा बैठी, और आलियान भी हंसता हुआ गाड़ी में जा बैठा। हमान भी अपने सर पर सर रख कर सोई हुई हूर को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो उससे बातें करती करती अब सो चुकी थी। एमल का सुधार ज़दा रवैया, उसकी शरारती तबीयत ने हमान पर भी थोड़ी तसल्ली उतारी थी, मगर फिर भी वो एमल के लिए फिक्रमंद था। सबने जो ये शादी खुफिया रखी थी, वो ज़रूर इसको इतनी आसानी से पाया तकमील पहुंचने नहीं देने वाली थी। देखना यह था कि अब ये उलझे सुलझे हालात आखिर को किस सिमत गामजन होते हैं। हमान ने भी इसी सोच में मुब्तला अपनी आंखें बंद कर ली। 2 दिन सबकी तरफ शादी की तैयारियों में मुतहरिक तरीन गुजरे थे। एमल और शानजे ने अगले 2 दिन भी तहजीब से हमान की क्लास ली थी, और एमल की शराफत भी हमान को किसी नई तूफानी लर्जाखेज बिजलियों के गिरने की वईद सुना रही थी। हमान की शादी एक ऐसा तजस्सुस था जो एमल को वक्त गुजरने के साथ मजीद लाहक हो रहा था, और जितना वो हमान और उसकी बीवी के लिए तजस्सुस में थी, वैसी ही लाताल्लुकी उस इंसान के लिए थी जिसे फैसल और मानिया ने गायबाना तौर पर एमल से जोड़ दिया था। हैरत की बात यह थी कि एमल ने भी उस इंसान को जानने की सिमत कोई कोशिश ना की। वो मामला उसे अपनी जिंदगी का एक गैर अहम तरीन हिस्सा लगता था। आजकल उसके लिए अहमियत का मदार किसी और तरफ रक्सा हो रहा था। 2 दिन एमल का हमान के हर अंदाज को तसल्ली से जांचना और हमान का एमल की सिमत से सुलझाव पाना उसे भी उलझा गया था।
वो एमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर तो खुद को राजी कर चुका था, मगर एमल जैसी आफत को संभालना और इस रिश्ते को जिससे सबने ख्वामखा की उम्मीदें बांध ली थी उसे तकमील तक पहुंचाना एक कठिन अमर था। अगले 2 दिन आली भी अपने क्लब और काम में मसरूफ रहा और शानजे ने दिल में शुक्र किया। वो शख्स अभी शानजे के लिए गैर अहम सा होकर भी उसे किसी भी लम्हे खुद में समो लेने का हुनर रखता था, और वो इसी वजह से खौफजदा थी कि अगर उस इंसान की दीवानगी उसे भी अपने शिकंजे में ले गई तो क्या होगा। हमान के उलझे मूड का कुछ बेहतर हो जाना भले हानिया के लिए तसल्ली आमेज था, मगर वो फिर भी इस शादी से कहीं नाला सी थी। घर में यहाँ भी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, जिसकी जिम्मेदारी मानिया और हानिया ने खुशी से उठा ली थी। दूसरी सिमत अकबर के भेजे लोगों का जगह जगह रशीद के घर की छानबीन की भिनक पड़ते ही रशीद ने अजमत और नूर दोनों को एक पुराने गांव के घर पर जाकर छुपा दिया। वो इस सारे मामले को बड़ी चालाकी से देख रहा था। दूसरी सिमत उसका वकील मुसलसल कोर्ट में शानी की जमानत की कोशिशों में था। 2 दिन के बावजूद भी अकबर के आदमियों को फिलहाल तक रशीद के मुतल्लिक कुछ अहम पता नहीं चल सका था, और न ही उसके दोनों घरों में अजमत और उसकी बेटी के होने की कोई इत्तला मिली थी। मामला आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा हो रहे थे। कई उलझने थी जिनके हल की शदीद हाजत थी। एमी, ये देखो तुम्हारे ससुराल से कुछ गिफ्ट्स आए हैं और ब्राइडल ड्रेस की पिक्स भी हैं, तुम सिलेक्ट कर लो, आखिरी वक्त पर नुक्स मत निकालना। एमल, जो यूनी के बाद चेंज किए बेड पर औंधी लेटी बबल चबाते हुए अपने फोन में गुम थी, मानिया को बहुत सारी शॉपिंग बैग्स के साथ आता देखकर नजाकत और नापसंदीदगी से नाक चढ़ाए जानबूझकर फोन में ही गुम रही, और मानिया उसका यह रवैया देखकर थोड़ी फिक्रमंदी से उसके पास आकर बैठी। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं मामा, लिहाजा मुझसे ये सब मत पूछें। आप और बाबा ने ही ये सब तय किया है तो आप दोनों ही ये सब देखें, मुझे तंग मत करें। एमल ने सख्ती के साथ हर तैयारी से खुद को बरीउज़िमा करते मुंह टेढ़ा किया, और मानिया उसके इस गैर दिलचस्प रवैये पर एमल के दानिस्ता हर मामले से गुरेजा होने पर तशवीश में मुब्तला लगी। लेकिन शादी तुम्हारी है, एक बार शादी होती है, प्लीज एमल कुछ ऐसा वैसा मत करना कि मैं और तुम्हारे बाबा किसी के सामने सर उठाने के काबिल ना रहें। मानिया की ऐसी दिलखराश बात पर पिछले 2 दिन का एमल का अच्छा मूड एक लम्हे में तबाह हुआ, और वो बरहमी से फोन बेड पर पटके उठ बैठी। खुद मानिया तक बौखला गई। आप दो ऐसा करते कि जब मैं पैदा हुई थी तभी गला दबा देते, मेरा सुकून मिल जाता आप दोनों को। मैं आपकी कोई बात ना मानूं तब मसला, और अगर अब मैंने मान ली है फिर भी आपकी शिकायतें दूर नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप सब मुझसे, मैं कहीं चली जाऊं? एमल के फट पड़ते अंदाज पर मानिया की आंखों में खौफ की लहर पूरी कुव्वत से बेदार हुई। वो एकदम इस कदर भड़क उठी कि खुद एमल का सांस बेरब्त हुआ। एमल मेरी जान, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? मत दो अपनी राय, लेकिन अपने मम्मा और बाबा को गलत मत समझो। हम जो कुछ करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। मानिया ने उठकर उस बेलगाम भला का चेहरा हाथों में भरे तासुब से कहा, मगर एमल ने बेदर्दी से मानिया के हाथ झटक कर यूं देखा कि मानिया के अब दिल पर आरे चलते महसूस हुए। किससे कर रहे हैं आप मेरी शादी? एमल ने मानिया की किसी बात को जरा अहमियत ना देते हुए तपे हुए सवाल पूछ डाला, जिससे मानिया पहले ही खौफजदा थी। मानिया को तो चुप लग गई थी, और एमल को लगा कि उस इंसान का पता उसे लाजमी होना चाहिए। तुम्हारे बाबा ने ही तय किया है, उन्हीं के जानने वाले का बेटा है। मानिया के होंठ बोलते वक्त कपकपा से उठे, जो एमल को मजीद मशकूक कर गए। मानिया उससे नजरें भी चुरा रही थी। जब मर्जी आपकी, लड़का आपकी पसंद का। एमल के अच्छे बुरे का इख्तियार आप दोनों के पास है, तो मुझसे दोबारा कुछ पूछने की गलती ना करिएगा मम्मा। ये ना हो अगली बार गुस्सा इस बाबा के जानने वाले के बेटे पर जा उतरे और ख्वामखा आप और बाबा के मुझे इस घर से चलता करने के मंसूबे धरे के धरे रह जाए। जिससे करनी है शादी कर दें, लेकिन किसी चीज में मुझसे कुछ मत पूछिए। गुड नाइट। एमल ने तमाम तर तहजीब बालाए ताक रखकर अपने अंदर की असल उलझन को आज सारा उगल डाला। मानिया तो सदमे किसी कैफियत में एमल की इंतहा को पहुंची बदगुमानी देखकर पथरा गई, और इससे पहले कि वो एमल को मजीद कुछ कहती, एमल ने जबड़े भींचकर रुख फेर लिया। मानिया भी दिल बर्दाश्ता सी होकर कमरे से बाहर निकल गई। 2 दिन का सारा सुकून गारत हो गया था। एमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर इतनी इश्तियाल अमेज क्यों हो गई थी। तमाम शॉपिंग बैग को उठाकर जमीन पर फेंकने के बाद वो अपना सर मसलती वॉशरूम में घुस गई। बैठे बैठे मुसीबत नाजिल हो गई है। ओ क्यों, मैं कुछ दे दिला के मामला रफा दफा करके मरे थे। अगर शानी की जमानत नहीं हो रही तो रहने दे उस खोते को वहीं, तू वापस आ। थाने में कुछ मशकूक से बंदे आए हैं, और मुझे पता चला है कि पूरे गांव में मेरे मुतालिक पूछ-पूछ करवाते फिर रहे हैं। अगर वो अजमत मेरे लिए कोई मुश्किल बनी तो तुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। इस वक्त जब मुझे इलेक्शन सर मत्थे पे हैं, तो मैं इस बेअकल औरत को कोई खतरा बनने नहीं दे सकता।
कलफ लगे चमकते सफेद सूट में मलबूस रशीद इस वक्त अपने पक्के गंदमी रंग और अखीर स्याह खौफनाक दाढ़ी में लिपटा सख्त मुश्तइल था। रात की स्याह तारीकी में वो हवेली के सहन में खड़ा फोन पर अपने खास बंदे से मुखातिब था। अपनी मूंछ को ताव देता उसका हाथ उसके घुंघर वाले बालों में फेरा गया और दूसरी सिमत फर्माबरदारी से कहकर फोन रखा गया। उसी लम्हे रशीद का गार्ड उस तक आया और मौद्दिब हुए रशीद के करीब आया। सरकार, बाहर 2 आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। वो मलगजी सा आदमी ये कहकर रशीद की जबरन सी हाँ पर वापस मुड़ गया और रशीद मोहताज से अंदाज में दोनों हाथ कमर पर बांधता अब सामने निगाहें कर चुका था, जहां 2 आदमी, जिनमें एक शाकिर था और दूसरा आलम, रशीद के गार्ड के साथ अंदर आ रहे थे। शाकिर और उसका कांस्टेबल आलम दोनों ही भूरे रंग के कमीज शलवार में मलबूस संजीदा से वहीं आ चुके थे, जिस पर रशीद ने कुछ उड़ती निगाह दोनों पर डाले नखुवतपन से बैठने का इशारा किया और खुद भी उनके मुकाबले अपना कड़कता सूट दामन से झाड़े पांव पे पांव चढ़ाए बैठा। जी फरमाए, किस लिए आना हुआ? रशीद ने सीधा स्वभाव उनसे इस्तफसार किया, जिसके बाद शाकिर ने तसल्ली से उस आदमी के चेहरे पर गरूर जांच कर जेब से कागज निकालकर सामने धरा। यह आपके घरों का सर्च वारंट है रशीद साहब। हमें इतला मिली है कि अजमत नामी औरत को आपने पनाह दी है और एक मुजरिम को पनाह देना भी जुर्म है। शानी आपका बेटा है यकीनन, जो अगवा के जुर्म में पहले ही जेल में है। हम आपसे ताउन चाहते हैं। अजमत की हमें खबर दे दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। शाकिर ने खुद ही लहजे में भरपूर तनबीही रंग मिलाए अपनी बात साफ साफ गोश गुजार की और रशीद के चेहरे पर फैलती सफेदी इस बात का सबूत थी कि वह उन 2 आदमियों की बात और धमकी समझ चुका है। रशीद ने अपने से कुछ दूर खड़े गनमैन को इशारा किया, जिस पर वो गन ताने उन 2 को घेर चुके थे। शाकिर और उसका साथी जानते थे कि यहाँ खतरा है, लिहाजा यहाँ की पुलिस को वो लोग साथ लाए थे, जो हवेली से कुछ दूर ही चौकस होकर मौजूद थे। रशीद ने तनफ्फुर से दोनों के बेखौफ चेहरे देखे और फिर वो सर्च वारंट उठाकर उसे फाड़कर टुकड़े उन्हीं 2 पर उछाल दिए। ना मैं तुम्हारे इन वारंट शारंट को मानता हूँ, ना ही इस इलाके की पुलिस में इतना दम है कि वो मुझसे आकर कोई सवाल करे। मैं किसी अजमत को नहीं जानता। मुझे खुद उस मनहूस की तलाश है जिसकी वजह से मेरा पुत्र जेल में है। अब अपनी शक्लें लेकर यहाँ से गुम हो जाओ, वरना यहीं खड़े खड़े तुम 2 की जिंदगी ले लूंगा। रशीद की धमकी का इस बात पर शाकिर और उसके आदमी ने सख्त बरहमी से उस शख्स की शराफत का पर्दा चाक होते देखा और शाकिर की कनपटी से लगती गन ने एक पल में उसका सांस सुखाया। यह आप बहुत गलत कर रहे हैं रशीद साहब, इसकी सजा आपको सहनी होगी। शाकिर ने हरासा नजरों के बावजूद उसे वार्निंग दी और रशीद ने मुज़हका खैजी से हंसकर उन 2 को बारी बारी खून आशाम निगाहों से देखा। अभी पीछे ही मुड़े थे कि जहां गांव का थानेदार अफजल हंसता हुआ अपने 3 आदमियों के साथ इंटर हुआ और उन 2 के बजाय रशीद से दोस्ताना कहकहों में हाथ मिलाता साथ जा मिला। अब शाकिर उसका साथी वाकई सख्त खौफ में मुब्तला लगे। वो थानेदार जो उनका साथ देने आया था, अब रशीद के साथ खड़ा उन 2 पर हंस रहा था। ये 2 अकबर के चमचे हैं, जानते तो है ना आप उसे। वो कमीना वहां बैठकर भी यहाँ तक पंगे कर रहा है। सरकार, मैं तो कहता हूँ इन 2 का काम तमाम कर दें। अफजल नामी खबीस की ऐसी बात सुनकर शाकिर और उसके साथी ने हलक से थूक निकला और उन 2 की टांगे उस वक्त कांपी जब रशीद और अफजल के कहे एक के बाद दीगरे 4 गोलियों की आवाज आई और खून के छींटे से उनके बीचों बीच उड़कर फैले। शाकिर और उसका आदमी आलम दोनों एक लम्हे में रशीद की बेरहमी का शिकार होकर मौत से जा मिले। उन 2 की लाशों को फौरी पक्की ठिकाने लगाने का हुक्म करता रशीद खबासत से अफजल को आंख मारता, पंजा मिलाए अपनी हैवानियत का प्रचार करता इंसानियत पर कालक मलता दिखाई दिया। अकबर के तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि उसके वो वफादार जाबाज उन वहशी दरिंदों के हाथों अबधी नींद सो चुके थे। शाकिर ही वो आदमी था जिससे अकबर का राबता था और अब उसकी इस गुमशुदगी की खबर अकबर को कल ही होने वाली थी। मैं ना जरा आज एक मतलब के लिए आया हूँ सरकार। वो दरअसल गहरी रात की तारीकी में तमाम जराइम के सबूत मिटाने के बाद दरवाजे से कुछ दूर खड़ा वो करप्ट और खबीस सा अफजल नामी थानेदार गर्दन पर हाथ फेरे निगाहों में मतलब भरे रशीद की सिमत पूरे सरारी से देखते हुए बोला और रशीद ने बिना कहे इस कमजोरी को भांप कर खिसियानी हंसी हंसकर अपना हथौड़े जैसा हाथ उसके कंधे पर थपका। अब तूने अपन के लिए इतना बड़ा कारनामा किया है तो इनाम भी बड़ा बनता है। बोल क्या चाहिए? बिना मतलब के तो आजकल कोई किसी को अपना बुखार ना दे। तभी रशीद की खोजती आंखें अफजल के इरादे भाप कर गहराई से उसका मतलब जान गई थी। वो लड़की जो उस अजमत के साथ है इनायत कर दीजिए, बदले में शफाफ इलेक्शन करवाना और आप तक किसी स्याह साए को ना पहुंचने देना अफजल का काम। बड़ा ही कोई खबीस और लानती इंसान था ये अफजल भी। इसका अंदाजा रशीद को था। वैसे भी वो उस नूर नामी लड़की से आजिज था। उसी के पीछे शानी अपनी मत वजा बैठा था और अब जब वो लड़की बैठे बिठाए रशीद के मकसद में इस्तेमाल हो रही थी तो उसे और क्या चाहिए था। एक तीर से 2 निशाने लगाना वैसे भी उसकी पुरानी आदत थी।
ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے تو افضل ہے، چل کیا یاد کرے گا کہ سخی سرکار سے پالا پڑا، لیکن اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے تجھے میرا ایک اور کام کرنا ہوگا، اس کے بعد تو جان اور وہ چھوری۔ رشید بھلے ایک نمبر کا ان پڑھ جاہل تھا، پر گدھے کو باپ بنانا اور ہر مطلب کو صحیح وقت پر نکالنا اسے خوب آتا تھا۔ اس بات پر افضل کے چہرے پر تھوڑی تشویش سی جاگی، مگر نہ جانے رشید نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے قریب ہو کر شیطانیت اور حیوانیت کا کون سا نیا منصوبہ گوش گزار کیا کہ اگلے ہی لمحے دونوں کے چہرے پر پھٹکار پھیلاتا قہقہا اتر چکا تھا۔ دونوں نے رازداری سے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیے اور افضل اپنے 3-4 آدمیوں کو اشارہ کرتا حویلی کے بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ رشید کی آنکھوں میں حقارت تھی اور شکل پر وہی تاثر تھا جو میدان جنگ میں دشمنوں کو ٹھڈے اور لاتیں رسید کرنے والے تھوبڑوں پر رقص کرتا دکھائی دیتا ہے۔